Welcome students. In the last 3 videos you saw how to read the contents of a text file in various ways, that is line by line, character by character, word by word. Means reading, how to read data from the text files you have already learned, and you have also seen how to write data on a text file. But now we are going to discuss two very important operations on text file which are often required whenever we are operating over text files, and that is modification and deletion of data in a text file. What if I want to change the data which is already written on the file? What if I want to delete one of the contents or some contents from the file which is already created? So for this we need to modify or delete the contents of the text file. So how we are going to do it? This is what is going to be discussed here. So actually the functions that will be required for modification and deletion are basically the same, which are for reading and writing data on a text file. But here two more functions are required, because the process of modifying or deleting the contents of a text file requires a tricky process. And what we actually do, for that we need two functions. So let us first study those two functions and then we'll move on to the programs doing modification and deletion on the text file. So what are the two functions? These two functions are present in the OS module of Python library. So whenever you want to use the two functions, you have to first import this module in your program, and then you will be able to utilize them. So let us see what are those two functions. First is the remove function. Remove function is used to delete a file permanently from the hard disk. Okay, so what you are going to do is simply import OS and then write os.remove and give the file name. So you can see in the example I have written os.remove story.txt. Okay, so what will happen? It will permanently delete story.txt file from the hard disk. Okay, so since you are here working with text files programmatically, so reading, writing, modification, deletion, everything of the files will do through programs only. Okay, so this function of OS module is used to remove a file permanently from the hard disk. Second is rename. This function, as the name suggests, is used to give another name to an existing file on disk. So if you want to rename a file, then you can use this function of OS module. How to use it? You will write import OS and then os.rename. First you will give the old file name and then you give the new file name. You can see the example also. Suppose I want to rename doc.txt with the name document.txt, so I can utilize these functions. Now you must be thinking that when we are requiring modification or deletion, why are these two functions required? Actually, for this you must first understand the process of modification and deletion. ठीक है, तो मॉडिफिकेशन करने के लिए हम क्या करते हैं कि जब हमें एक फाइल पे मॉडिफिकेशन करना है तो हम उस एंड यूजर को बताए बिना एक और फाइल क्रिएट करते हैं. ठीक है, एंड यूजर विल नेवर कम टू नो दैट अनदर फाइल वाज क्रिएटेड. ठीक, हम क्या करते हैं, सपोज हमें कोई एक पर्टिकुलर थिंग चेंज करनी है तो हम उस फाइल का कंटेंट एक एक करके रीड करते हैं. सपोज हमें किसी एक वर्ड को चेंज करना है. सपोज WHN लिखा है और मुझे उसकी जगह WHEN करना था, तो मुझे इस वर्ड को यानी WHN को WHEN से रिप्लेस करना है. तो मैं इस फाइल को वर्ड बाय वर्ड रीड करूंगी और जैसे ही मुझे WHN मिलेगा, इंस्टेड ऑफ राइटिंग WHN आई विल राइट WHEN. लेकिन ये मैं कहाँ लिखूंगी? इसके लिए मैंने एक टेम्परेरी फाइल राइटिंग के लिए खोल रखी है. ठीक है, और हमारी एक जो गिवन फाइल है उसको रीडिंग मोड में खोलेंगे. ठीक है, और अब मैंने एक एक वर्ड रीड करना शुरू किया. मैंने फर्स्ट वर्ड रीड किया, व्हेन नहीं था, मैंने उसको टेम्परेरी फाइल पे लिख दिया. फिर मैंने दूसरा वर्ड रीड किया, व्हेन नहीं था, उसको भी दूसरी फाइल पे लिख दिया. लेकिन जैसे ही मुझे थर्ड वर्ड मैंने रीड किया और देखा कि ये WHN है, तो मैंने WHN को वहाँ पे नहीं लिखवाया, मैंने इसकी जगह WHEN लिखवा दिया. ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्ड रीड किया,
कॉपीड, नेक्स्ट वर्ड रीड किया कॉपीड, फिर से मुझे वेन मिला WHN, तो मैंने WHN ना लिखवा के WHEN लिख दिया। अब इस तरह से मेरा पूरा फाइल का कंटेंट कॉपी होता जाएगा, लेकिन जहाँ जहाँ करेक्शन करने थे वहाँ पे करेक्ट वर्ड लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करोगे, जब सारा डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा, मतलब सारा डेटा कॉपी हो जाएगा विद करेक्शंस, आप क्या करेंगे, ओरिजिनल फाइल को डिलीट कर देंगे। ठीक है, ओरिजिनल फाइल को डिलीट करने के बाद जो हमने टेम्परेरी फाइल बना रखी है उसको रीनेम कर देंगे और वही नाम देंगे जो ओरिजिनल फाइल का था, लेकिन पहले रिमूव करना होगा तब रीनेम करना होगा, क्योंकि दो फाइल्स एक ही लोकेशन में सेम नेम की नहीं हो सकती। ठीक है, तो आप देखिए मैंने इसको कैसे किया है। फॉर दिस आई एम टेकिंग अप अ प्रोग्राम। क्वेश्चन सेज कंसीडर अ फाइल नेमली imagine.txt इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंटेनिंग सम डेटा। imagine.txt आपके पास ऑलरेडी है, उसमें कुछ डेटा है, एंड राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स द अबव फाइल एंड रिप्लेसेस ऑल द occurrences ऑफ द वर्ड डू विद डस इन द सेम फाइल। मतलब उसी फाइल में डू की जगह डस कर देना है। तो जैसा कि मैंने बताया, आई एम नॉट गोइंग टू टेल टू द एंड यूजर दैट आई एम इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग दीज करेक्शंस, आई एम मेकिंग अ टेम्परेरी फाइल। मैं उसको ये चीज़ नहीं पता लगने दूंगी। क्या करूँगी, सारे वर्ड्स वर्ड बाय वर्ड रीडिंग करेंगे इस फाइल की, क्योंकि हमें वर्ड को रिप्लेस करना है। अगर किसी कैरेक्टर को रिप्लेस करना होता तो हम उसको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करते। मान लीजिए किसी लाइन को रिप्लेस करना होता तो हम उसको लाइन बाय लाइन रीड करते। सो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन वी हैव टू रीड द फाइल वर्ड बाय वर्ड। अब क्या होगा, हमने पहला वर्ड रीड किया, अगर वो डू होगा तो डू नहीं लिखवाएंगे, वहाँ पे टेम्परेरी फाइल में डज लिखवाएंगे, लेकिन अगर कुछ और है तो उसको एज इट इज़ लिखवा देंगे। ठीक है, तो ये सारा काम करते जाएंगे कॉपी करने का विद करेक्शंस, और जैसे ही मेरे सारा डेटा वहाँ पहुँच जाएगा, ओरिजिनल को डिलीट करके टेम्परेरी को रीनेम कर देंगे। तो एंड यूज़र जब भी हमारे फाइल को देखेगा तो उसको लगेगा कि उसी फाइल में चेंज हुए, लेकिन एक्चुअली आपको मालूम है कि बीच में एक टेम्परेरी फाइल बनी थी। ठीक है, अब देखिए कैसे किया। First of all, I have imported OS module. I told you that we are going to use remove and rename functions. So, OS module has been imported. You can see here. Okay. Then I have opened the imagine.txt file in reading mode, क्योंकि इससे हम एक एक वर्ड रीड करेंगे और दूसरी फाइल पे लिखते जाएंगे। और मैंने दूसरी फाइल जो टेम्परेरी फाइल है, इसका आप कुछ भी नेम रख सकते हो, मैंने टेम्प रखा है, और इसको राइटिंग मोड में ओपन किया है। तो इसका फाइल हैंडल है NF और imagine.txt का F, तो F से रीड करेंगे, NF से राइट करेंगे। ठीक, अब मैंने क्या किया, एक एक लाइन पहले मैंने S में नल स्ट्रिंग हैविंग स्पेस स्टोर कर लिया, और मैं तब तक लाइन्स रीड करूँगी जब तक मेरे S में नल स्ट्रिंग ना आ जाए, यानी एंड ऑफ फाइल ना आ जाए, तब तक मैं रीडिंग करती रहूँगी। उसके बाद मैंने क्या किया, एक लाइन रीड की, उस लाइन को स्प्लिट किया, और उस लाइन को स्प्लिट करने के बाद मैं चेक कर रही हूँ, जहाँ जहाँ पे स्प्लिट किया तो लिस्ट ऑफ वर्ड्स मिल गया। ठीक है, अब इस लिस्ट के एक एक वर्ड एलिमेंट को मैं चेक कर रही हूँ कि वो डू है कि नहीं। अगर वो डू है, ठीक है, तो उसकी जगह देखिए डज लिखवाया है, डज के साथ एक स्पेस भी दी है, क्योंकि डज लिखे तो नेक्स्ट वर्ड एक स्पेस के बाद आए। ठीक है, और अगर डू नहीं है तो वो जो एक्स में आई में आया वही वर्ड एज इट इज़ लिख जाएगा। यानी कि डू, अगर आई में डू आया तो आई नहीं लिख रहे हैं, डज लिख रहे हैं, और अगर कोई और वर्ड आया तो आई को ही कॉपी कर दे रहे हैं। ठीक है, फिर ये काम हमारा होता रहेगा, एंड एट द एंड you know that when one line will be completed I have to shift to the next line, क्योंकि नेक्स्ट लाइन को नेक्स्ट लाइन में ही लिखना है, इसलिए लाइन चेंज भी करवा दिया। अब ये लूप चलता रहेगा, अभी तक एक लाइन रीड हुई थी, अब नेक्स्ट टाइम यू विल गो बैक एंड रीड द नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन रीड करोगे, फिर से उसकी स्प्लिटिंग होगी, एक एक वर्ड को, अगर डू है तो वहाँ पे जाके डज लिखवाएगा, नहीं है तो एज इट इज़ लिखवाएगा, और ये काम हमारा रिपीट होता रहेगा जब तक कि सारी फाइल की लाइंस रीड नहीं हो जाती और चेंज और कॉपी नहीं हो जाती। ठीक है, उसके बाद देखिए मैं क्या कर रही हूँ,
दोनों फाइल्स को क्लोज कर रही हूँ। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फाइल को रीनेम और रिमूव करने के प्रोसेस से पहले दोनों फाइल्स को क्लोज कर दीजिए, बिकॉज यू नो दैट whenever you want to delete any file it must not be in use already, यूज में नहीं होनी चाहिए, वरना डिलीशन कैसे होगा। इसलिए जब भी आप ऐसा करते हो, नॉर्मली भी करते हो, तो आपसे कहता है कि दिस फाइल इज इन यूज, आई कांट डिलीट इट। सो सेम वे हेयर ऑल्सो, पहले आप दोनों फाइल्स को क्लोज कर दीजिए, डिस्कनेक्ट कर दीजिए, अब उनको रिमूव करिए, फिर रीनेम करिए। सो मैंने imagine.txt को रिमूव कर दिया। imagine.txt मेरी ओरिजिनल फाइल थी, और फिर मैंने temp.txt को imagine.txt नाम दे दिया। फिर यूज़र को बता दिया करेक्शंस डन। आउटपुट देखते हैं। देखिए आउटपुट में उसको करेक्शंस डन मिल गया, मतलब उसको इंडिकेट हो गया कि सारे करेक्शन हो गए। अब वो उसको क्या लग रहा है कि वो imagine.txt खोल रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो imagine.txt थी नहीं, वो temp.txt थी, जिसको हमने रीनेम कर दिया। ठीक है, तो देखिए पहली फाइल, ये जो हमारी ओरिजिनल फाइल थी वो थी original.txt। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले उसने हाउ रीड किया, हाउ उसको सेम कॉपी कर दिया, फिर डू रीड किया, डू की जगह डस लिख दिया, फिर यू रीड किया, एज इट इज़ लिख दिया, फिर डू रीड किया, एज डज लिख दिया। ठीक है, अब फिर लाइन चेंज कर दी, आपको अभी मैंने प्रोग्राम दिखाया था। ठीक है, उसके बाद वेयर रीड किया, एज इट इज़ कॉपीड, लेकिन डू रीड किया तो डज लिखवाया, यू लिव वैसे ही लिखवा दिया। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आप देखिए, इस डू को उसने डज में नहीं किया, क्यों? क्योंकि ये डू नहीं है, दिस इज DO क्वेश्चन मार्क। तो इस वाले डू को नहीं, एज एन इंडिविजुअल वर्ड डू जहाँ जहाँ प्रेजेंट है वहाँ पे हम डू की जगह डज करवा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए देखिए डन की जगह डन रहा, डज की जगह डू की जगह डज हुआ है, बाकी सब जगह वो वैसा ही रहा है। ठीक है, सो next program is write a program to read the contents of a text file goods.txt and replace all the occurrences of two or more consecutive spaces by a single space in the text file। मतलब यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि जो मेरी फाइल्स है goods.txt फाइल, उसमें जो कंटेंट है उस कंटेंट में हर वर्ड के बीच में एक स्पेस नहीं है, एक से ज़्यादा स्पेसेस भी हो सकते हैं। तो अगर एक से ज़्यादा स्पेसेस हैं तो आपको उन सारी स्पेसेस को रिड्यूस करके सिंगल स्पेस में कन्वर्ट करना, और जहाँ सिंगल स्पेस ही है वहाँ पे वो वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप आइडिया लगाइए कि क्योंकि मुझे हर कैरेक्टर से काम है, सो आई शुड रीड द कंटेंट्स ऑफ दिस फाइल कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। ओके, सो फॉर दिस व्हाट आई हैव डन, सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव इम्पोर्टेड OS मॉड्यूल, goods.txt को रीडिंग मोड में और temp.txt को राइटिंग मोड में ओपन किया है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, आप अपनी टेम्परेरी फाइल को कोई भी नेम दे सकते हैं। ठीक है, F से रीडिंग होगी, N से राइटिंग होगी। ठीक है, T को 0 इसलिए लिया है क्योंकि जब आप एक एक कैरेक्टर रीड कर रहे हैं, देखिए मैंने बेसिक यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लगाया है कि मैं एक एक कैरेक्टर रीड कर रही हूँ, जैसे ही मुझे स्पेस मिलेगा, पहला स्पेस, तो मैं उस स्पेस को तो फाइल पे लिखवाऊंगी, लेकिन अगर उसके तुरंत बाद का कैरेक्टर स्पेस है तो उसको वहाँ पे नहीं लिखवाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए ही मैंने ये वेरिएबल T लिया है। मैंने एक एक लाइन रीड की, नहीं एक एक लाइन नहीं, एक एक कैरेक्टर रीड किया। अगर वो कैरेक्टर स्पेस है तो हमने क्या किया और चेक किया कि अगर T 0 है, देखो T को हमने 1 कब बनाया है, जब हम पहली स्पेस लिख दे रहे हैं या फिर हमने कोई नॉन स्पेस कैरेक्टर रीड किया है। ठीक है, देखो क्या है कि यहाँ पे आपने, सपोज आई टेक सम एग्जाम्पल, सपोज आई राइट द होम एंड बिटवीन द एंड होम सपोज 3 स्पेसेस आर देयर, तो सबसे पहले ये T रीड करेगा। T को चेक किया, ब्लैंक ये स्पेस नहीं है, तो आप सीधे एल्स पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एल्स में आए और आपने T को temp.txt में लिख दिया, और जो T हमारा 0 था वो 0 ही रहा। ठीक है, फिर हम ऊपर गए, अब हमने H रीड किया, H भी हमारा स्पेस नहीं है, तो हम एल्स में आएंगे और H को यहाँ कॉपी कर देंगे। फिर E रीड किया, E को भी
क्या होगा, ई भी हमारा स्पेस नहीं है, कॉपी हो जाएगा। और टी देखिए 0 का 0 ही बार बार 0 ही हो रहा है, लेकिन एक सिचुएशन आएगी जब टी 1 हो चुका होगा, उसको दोबारा 0 बनाना पड़ता है। देखिए क्या हुआ, फिर मैंने अब यहाँ पे स्पेस रीड किया। अब इस समय देखिए मैंने स्पेस रीड किया है, तो हम यहाँ आए हैं, ट्रू हो जाएगा, तो फिर यहाँ आएंगे। अब वो देखेगा कि क्या टी 0 है। मालूम इस कंडीशन से क्या हो रहा है, वो ये चेक कर रहा है कि अगर टी 0 है तो ये पहला स्पेस है, क्योंकि जैसे ही मैं ये स्पेस वहाँ पे लिखवा दूंगी, मैं टी को 1 बना रही हूँ। देखिए क्या किया, टी अगर एस स्पेस है और टी 0 है, तो मैंने इस कैरेक्टर को फाइल पे लिखवा दिया और उसके बाद तुरंत टी को 1 बना लिया, इसलिए ताकि अब अगर मुझे नेक्स्ट कैरेक्टर स्पेस मिलेगा तो मेरा टी 0 नहीं होगा, और जब टी 0 नहीं होगा तो मैं उस स्पेस को फाइल पे नहीं लिखवाऊंगी। तो मेरा एक स्पेस यहाँ आ चुका है। उसके बाद जब मैंने ये रीड किया, मेरे फिर से स्पेस आ गया। अब जब मैं ऊपर गई तो ये कंडीशन तो ट्रू हुई, एस इज इक्वल टू स्पेस, लेकिन ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई। तो क्या होगा, आप इस इफ़ के अंदर गए नहीं, और इस इफ़ का अपना एल्स भी नहीं है, क्योंकि ये एल्स तो इस इफ़ का है, आउट ये वाला जो एल्स है ये इस वाले इफ़ का है, तो इस इफ़ का तो एल्स है ही नहीं, इसकी कंडीशन ट्रू हुई नहीं, तो कुछ भी नहीं हुआ। अब आपने रीड किया एच, जब आपने एच रीड किया तो आप कहाँ आ जाएंगे, इस कंडीशन में आएंगे, एल्स में फिर से, और एच को क्या करेगा, वो लिख देगा। ठीक है, फिर आप ओ रीड करेंगे। हाँ, एच को लिखने के बाद देखो उसने क्या किया, टी को फिर से 0 बना दिया। अब यहाँ पे टी को 0 बनाने का ये मतलब है कि हमने यहाँ पे जब एच लिखवा दिया है, तो अब अगर मुझे कोई स्पेस मिलती है तो वो फिर से पहली स्पेस होगी, इसलिए टी को 0 बना दिया। ठीक है, तो अब उसने ओ रीड किया, ओ लिख दिया, एम रीड किया, एम लिख दिया, ई रीड किया, ई लिख दिया। फिर मान लीजिए स्पेस आई, तो अब की बार ये पहली स्पेस होगी, लिखी जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए फिर से स्पेस आई, तो ये दूसरी स्पेस होगी, टी 1 हो चुका होगा, इसलिए फाइल पे नहीं लिखेगा। दिस वन इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड ऑफन आस्क्ड इन एग्जाम, सो प्लीज़ replay it if you have not understood, because this one is actually important. Okay, so after doing all this work, copying and transferring, I have closed both the files and then removed goods.txt and then renamed temp.txt by the name goods.txt, and for the sake of end user I have simply printed spaces replaced. Let us see whether we are getting the output or not. Output तो ये आ ही रहा है, फाइल का कंटेंट क्या है। सो हेयर यू कैन सी माई के बाद 3 स्पेसेस है, नेम के बाद 1 स्पेस है, तो 1 स्पेस देखिए, यहाँ की 3 स्पेसेस, यहाँ की 3 स्पेसेस 1 स्पेस में कन्वर्ट हो गई, और नेम और इसके बीच में 1 ही स्पेस थी तो 1 ही रही। फिर इस और राहुल के बीच में 2 स्पेसेस थी, 1 ही रही। यहाँ पे भी देखिए इतनी सारी स्पेसेस को सिंगल स्पेस से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया कि एक एक कैरेक्टर को रीड किया, अगर वो पहला स्पेस था तो टी 0 था, लिखवा दिया, जैसे ही लिखवाया टी को तुरंत 1 बना दिया। ठीक, अब फिर नेक्स्ट कैरेक्टर रीड किया, अगर वो स्पेस ही निकल आया तो आपका वो कैरेक्टर टी 1 पाएगा और नहीं लिखेगा। लेकिन अगर आपको वो कोई और कैरेक्टर मिल गया, यू विल स्ट्रेट अवे गो इन एल्स पार्ट, और आप उस कैरेक्टर को लिखवाएंगे और टी को फिर से 0 बना देंगे, क्योंकि इस कैरेक्टर के बाद अगर वो स्पेस आएगी तो वो स्पेस फिर से नई स्पेस होगी। So these were 2 programs illustrating you the concept of modification of a text file, for which we have used a temporary file and then removed and renamed it. So in this video children, I am only going to discuss this modification, and in my next video I will be discussing deletion of data from a text file. Okay, so I hope all of you must have understood these points. If you have any confusion, you can write it in the comment section. Thank you so much.